Hello guys, so this video will talk about the measures of goodness of fit. So what do we actually mean by measures of goodness and fit? Goodness of fit. So up till now, suppose you have data on x and y, okay, and you have fitted a regression line. So suppose your regression line is yi hat is equals to beta 1 hat plus beta 2 hat xi. So the measure of goodness of fit will actually tell you ki how well this regression line how well this regression line fits our sample data. So what do we actually mean by this? Ki, as I have drawn this several times, you have x here, you have y here, you have fixed values of x here and you have different values of y here. ठीक है, तो अगर आपने एक regression line fit की, so this is your regression line, so this is sample regression line which is yi hat is equals to beta 1 hat plus beta 2 hat xi. ठीक है, तो जो आपके y वैल्यूज है वो सारी तो इसमें नहीं रहेंगी ना, कुछ ऊपर होंगी कुछ नीचे होंगी और उनका गैप जो होगा वो एज ऑलवेज इट इज ui hat. Here we are talking about the sample, इसलिए I am using the notation hat. ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, सैम्पल एक सैम्पल है, हमने रिग्रेशन रन किया, वी हैव डिराइव्ड एन इक्वेशन. सो वी आर एक्चुअली नाउ ट्राइंग टू सी कि जो हमने इक्वेशन डिराइव की है, जो हमने ये लाइन डिराइव की है, ये जो आपकी y वैल्यूज हैं इनको कितनी अच्छी तरीके से फिट कर रही हैं, कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं. Is this clear? Things will get clearer as we discuss further in the video, but the whole idea is कि जो आपने regression line fit की है वो actually कितनी अच्छी है. ठीक है, अब ऐसा ना हो ना कि suppose कि आपने क्या किया कि आपका actual जो y values है एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन आपकी line यहाँ पर आ रही है. So that means in this example the regression line doesn't fit the sample data well. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि हम तो ये चाह रहे हैं ना कि जो रिग्रेशन लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजर हो टू द डेटा पॉइंट, लेकिन अगर वो क्लोजर नहीं है, ठीक है, तो देन इट इज़ नॉट अ गुड रिग्रेशन. So that is why the term goodness of fit. So measures of goodness of fit will actually tell us कि जो हमने regression run किया वो कितना अच्छा है. ठीक है. Now the first measure of goodness of fit is, which is not commonly used, it is called as standard error of regression. It is called as standard error of regression. ठीक है, it is generally denoted by SE, standard error of regression. It is generally denoted by SE और SER भी लिखा होता है इसको, standard error of regression. So what is this measure? So this basically it is a measure of the degree of dispersion of y values around the regression line. So basically this is a measure of it is a measure of the degree of dispersion of y values around the regression line. So let us see what is the formula of this measure. So इसका formula is simple. The SE और SER का formula होता है root under summation yi minus yi hat whole square upon n minus 2 or now what is yi? Now since yi minus yi hat is
सिंस yi माइनस y hat इज इक्वल टू ui hat, तो इस फॉर्मूले में आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन क्या हो गया, दैट इट इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ui hat स्क्वायर अपॉन n माइनस 2. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन क्या मेजर कर रहा है, इट मेजर्स द standard error of regression measures the average deviation. It measures the average deviation of the actual y value. It measures the average deviation of the actual y values. What are your actual y values? Your yi from the estimated values of y. From the estimated values of y, and what are your estimated values? Your estimated values are your yi hat. तो बेसिकली कि जो आपके एक्चुअल yi है, तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन है जो आपने फिट की ओएलएस से. ठीक है, इसको पॉपुलेशन अब कहीं पर मत लाना क्योंकि पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है. ठीक है, वो आपके अजम्पशन तक था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन. अब हम सैंपल की गुडनेस की आपने एक रिग्रेशन लाइन जो है फिट कर दी, वो कितने अच्छे तरीके से आपके सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है. तो एक्स यहाँ पर, वाई यहाँ पर, आपने यहाँ पे फिट कर दिया. ठीक है, तो दिस इज वन y1 hat. ठीक है, दिस इज y2 hat, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3. ठीक है, बट एक्चुअल y वैल्यू तो जरूरी नहीं है ना कि इस लाइन पे लाई करेगी. अगर सारी आपकी y वैल्यूज इसी लाइन पे लाई कर रही हैं, मतलब सारे y हैट के इक्वल है, तब तो कोई रेसिडुअल्स ही नहीं है. तब आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन 0 हो जाएगा बिकॉज देयर आर नो रेसिडुअल्स. ठीक है, बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना. y वैल्यूज आपकी इस लाइन के ऊपर हो सकती हैं, नीचे हो सकती हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन क्या मेजर करता है कि एवरेज डिस्पर्जन. so this is ui hat, this is ui hat, the average dispersion, ui hat is the dispersion. ठीक है, एवरेज डिस्पर्जन हम n-2 से इसमें डिवाइड करते हैं, हम n से नहीं डिवाइड करते. देयर इज एक्चुअली अ रीजन कि ये 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है. ठीक है, तो इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है. तो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसलिए हम इसको n-2 से डिवाइड करते हैं, बट नॉट सो मच सिग्निफिकेंट एट दिस स्टेज. आपने ये ध्यान रखना है कि एवरेज डिस्पर्जन है. एवरेज का मतलब कि सबको ऐड करके डिवाइड बाय n करते हो, लेकिन यहाँ पर हम n-2 करते हैं. उसके अलग स्टैटिस्टिकल रीजन है. तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द एवरेज डिस्पर्जन. जैसे वेरिएंस का फॉर्मूला होता है. ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इसमें आप क्या कर रहे हो, y माइनस y हैट होल स्क्वायर, मतलब एक्चुअल y वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड y वैल्यू सबके लिए. ठीक है, सबके लिए उनका फिर आप स्क्वायर कर रहे हो और उसको जो है n-2 से डिवाइड कर रहे हो. तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि स्मॉलर is the value of your standard error of regression, more precise our prediction will be. More precise our prediction will be. ठीक है, कि कितना ये डिस्पर्जन जो है, किसका डिस्पर्जन, एस्टिमेटेड वैल्यूज का एक्चुअल वैल्यूज से कम होगा. ऑब्वियसली अगर एस्टिमेटेड वैल्यूज y वैल्यूज से क्लोजर हैं तो इसका मतलब हमारी प्रिडिक्शन अच्छी है, जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की है वो अच्छी रिग्रेशन लाइन. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, so in case you have to calculate this for a, so if I do a numerical, to calculate the standard error of regression for the following data. Calculate the standard error of regression for the following data. ठीक है, suppose you have data on suppose x and y जनरली ले लेते हैं. ठीक है, 1 1 2 2
3 1.3, 4 3.75, 5 2.25। ठीक है, तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट। तो वो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैंने इतने सारे आपको मेथड करा दिए ना। इसमें आप जनरल OLS इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड से कर सकते हैं, या आप एक्स बार वाई बार वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसमें कर सकते हैं। तो सपोज मैंने जो है ये वाला मेथड लिया ना, बीटा टू हैट इज n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सपोज मैंने ये वाला मेथड लिया, क्योंकि इसमें ले सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो छोटी हैं। ठीक है, तो एक्स वाई इज 1 4 देन 3.9 15 एंड 11.25। ठीक है, देन वी नीड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज 1 4 9 16 एंड 25। समेशन एक्स करेंगे तो 15 आएगा, समेशन वाई करोगे 10.3 आएगा, समेशन एक्स वाई करोगे 35.15 आएगा, एंड समेशन एक्स स्क्वायर करोगे तो 55 आएगा। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट बीटा टू हैट। तो बीटा टू हैट की वैल्यू क्या आई, n इज 5 multiplied by 35.15 minus 15 multiplied by 10.3 upon 5 multiplied by 55 माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक यू विल गेट 0.425। you will get 0.425. So this is the value of beta 2 hat, which is 0.425. ठीक है, now beta 1 hat कैसे कैलकुलेट होगा? So beta 1 hat is y bar minus beta 2 hat x bar। ठीक है, तो y bar क्या होगा 10.3 by 5 माइनस बीटा 2 hat क्या है 0.425 एंड x bar is 3, मतलब 15 by 5 which is 3। तो बीटा 2 hat आ रहा है आपका 0.785। ठीक है, तो अब तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? सो रिग्रेशन इक्वेशन इज y hat is equals to 0.785 plus 0.425 xi। दिस इज माय रिग्रेशन इक्वेशन। अब मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला है? तो स्टैंडर्ड एरर का रिग्रेशन मैंने बोला इट इज समेशन yi माइनस yi hat होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 2। ठीक है, अपॉन n माइनस 2। सो यू नीड yi माइनस yi hat। y तो आपकी वैल्यूज है, y वाली वैल्यूज। ठीक है, आपको क्या निकालना है? You need to find out what are your yi hat। What are your yi hat? ठीक है, तो yi hat आपसे कैसे निकलेगा? तो आपकी जो इक्वेशन है which is 0.785 plus 0.425 xi। तो बार बार आप उसमें x की वैल्यू निकाल के yi hat डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में अगर आप x को 1 डालोगे you will get 1.21 y height की वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू y की ये है और आपके हिसाब से जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो है 1.21। ठीक है, सिमिलरली यू विल हैव 1.635। ठीक है, y की वैल्यू, देन 2.060, 2.485 and 2.910। Is this clear? So once you have got the values of yi hat, so I am again repeating the lack of space. So yi hat is 1.21,
1.635, 2.060, 2.485 एंड 2.910। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई आई माइनस वाई आई हैट, वाई आई माइनस वाई आई हैट। ठीक है, जैसे फर्स्ट में क्या है 1 माइनस 1.21, तो इट इज माइनस 0.21, और उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई आई माइनस वाई आई हैट होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट यू आई हैट है, ये यू आई हैट है और ये यू आई हैट स्क्वायर है, ये यू आई हैट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.044। सिमिलरली आप बाकी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, so you will get this as 2.791. You will get this as 2.791, 2.791। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस आर और एस ई क्या हुआ, that it is equal to root of 2.791 and 5 minus 2 because n minus 2 करना होता है, तो इसको आप करोगे तो ये आएगा 0.96। Now how do we interpret this? How do we interpret this? So basically this means that the standard distance or you can say the average distance between the actual y observation and the regression line, the actual y observation and the regression line, which is your estimated y, is 0.96 what 0.96 units of y. It is 0.96 units of y. See, basically देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन का रूट अंडर समेशन वाई आई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2। तो पहले तो रूट क्यों लिया, रूट इसलिए लिया क्योंकि अगर आप रूट नहीं लेते, अगर आप रूट नहीं लेते तो जो आंसर आता वो स्क्वायर्स में आता। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमारा यहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज प्राइस एंड और सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो कंजम्पशन इनकम वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं। कि सपोज आपका जो x है दैट इज इनकम एंड y इज कंजम्पशन ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, y का यूनिट है रुपीज, कंजम्पशन रुपीज में है, इनकम का यूनिट रुपीज है। ठीक है, तो रुपीज माइनस रुपीज इज ऑल्सो रुपीज, रुपीज स्क्वायर विल ऑल्सो बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट लिया, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट रुपीज होगा, यानी कि जो कि y का यूनिट होगा। तो इसमें बेसिकली क्या हमने बोला कि द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल कंजम्पशन एंड द एस्टिमेटेड कंजम्पशन इज 0.96 रुपीज, ठीक है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ, जो भी y का यूनिट हुआ वो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। इज दिस क्लियर, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। अब इसी इन्फ्रेंस से आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। देखो आप स्टैंड अलोन तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, स्टैंड अलोन आप जैसे मेरा इसमें आंसर आया 0.96 रुपीज इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपके पास सपोज कोई दूसरा रिग्रेशन होता, कोई दूसरा सैंपल होता, सपोज सेम इनकम कंजम्पशन वाला, सेम उसमें यूनिट्स होते हैं रुपीज से हमने मेजर किया होता, ठीक है, तो उसका भी आंसर अगर सपोज उसका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आता वो आता 2 रुपीज, तो आप कह सकते थे कि फर्स्ट वाला रिग्रेशन बेटर है बिकॉज स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन जो है वो लो है। लेकिन तभी आप ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कंपेयर कर सकते हो जब आपकी जो ये y वैल्यूज हैं, जब आपके जो ये हैं ये आपके कंपेरेबल हैं। ठीक है, ये आपके कंपेरेबल, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड बिकॉज ये यूनिट फ्री नहीं बनाता आपके, दीज आर नॉट यूनिट फ्री, कि स्टैंड अलोन तो जो है इसका कोई मतलब नहीं है कि इनके बीच में एवरेज जो डिस्टेंस है
between the actual Y values and the estimated Y values is 0.96 rupees. Standalone it does not make any sense. Only if you have another regression जो कि जिसकी Y value मतलब जो भी रुपीज में मेजर हुआ है, तो आप उसमें बोल सकते हो जिसका लोअर स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन है वो एक बेटर रिग्रेशन लाइन है, तो इसका स्टैंड अलोन कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। सो सिंस इसका कोई स्टैंड अलोन इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो हमें दूसरा मेथड जो है अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। Coefficient. Now this is an extremely important topic because it is the most widely used. It is the most widely used. You can say statistic in econometrics. मतलब ये बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, इनफैक्ट हम इसको कभी कभी ओवर यूज कर देते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी वी विल डिस्कस कि इसका क्या मीनिंग है ना। उससे पहले लेट अस लुक एट सम फॉर्मूले। Now we know that your yi is equal to yi hat plus ui hat. Everyone we are familiar with, ठीक है। This is what? This is your stochastic sample regression function. This is your stochastic sample regression function. This is stochastic SRS. In deviation form मैंने आपको इसका प्रूफ कराया है। In deviation form we can write that yi is equal to yi hat plus ui hat। अगर आप इसका डेरिवेशन भूल गए तो प्लीज आई सजेस्ट कि आप पहले वाले वीडियो को रेफर कीजिए, बट डेविएशन फॉर्म में ये होता है। सो वन वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट OLS decomposes a sample value. OLS decomposes a sample value. What is your sample value? yi. yi is मतलब yi क्या है? It is deviation from the mean. It is actually a sample value ना, मतलब चाहे yi कैपिटल से समझ लो या स्मॉल से समझ लो, हम डिविएशन फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इजियर कैलकुलेशन हो जाएंगे अभी आप देखेंगे। So OLS decomposes a sample value which is this, ठीक है, into two parts. So one is yi hat. Now what is yi hat? The estimated value. आपने estimate इसको किससे किया? Estimated value, or it is called as, which is explained by the explanatory variable, which is explained by the explanatory variable, ठीक है। And the second is ui hat, which is your residual and which is not explained and which is not explained. So what do we actually mean by this? कि suppose your true yi, ठीक है। अब ये बाद में कंफ्यूज नहीं होना, तो कैपिटल yi और स्मॉल yi में कोई फर्क नहीं है ना। स्मॉल yi is what? yi minus y bar, ठीक है। We use deviation form to make calculations easier. We will see how. तो स्मॉल yi suppose 5 है, ठीक है। आप ये एक्चुअल है, ठीक है। आपने अपने मॉडल से yi hat को 4.8 निकाला, ठीक है। तो जो ये आई, ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे आई कि आपने अपने x वेरिएबल के लिए, ठीक है, आपने अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से एक्सप्लेन किया कि अगर x इतना है तो y इतना होना चाहिए। So this is called as estimated value or something which is explained by your regression model. Explained by the regression model. कि अगर मेरा इनकम इतना था तो मेरा कंजम्पशन 4.8 था, तो इनकम से कंजम्पशन मैंने निकाला, एस्टिमेट किया 4.8, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 5,
तो यू आई हैट क्या हो गया, यू आई हैट इज 5 माइनस 4.8 विच इज 0.2, मतलब इतना जो y का कंपोनेंट है, टोटल y 5 है, ठीक है, इतना जो y का कंपोनेंट है वो मेरा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, विच इज समथिंग अनएक्सप्लेन्ड। वो जो है कंजम्पशन ने एक्सप्लेन, वो जो है इनकम ने एक्सप्लेन नहीं किया। देयर माइट बी अदर फैक्टर जिनकी वजह से जो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट y के इक्वल नहीं आया। आपका आंसर रिग्रेशन लाइन पे 5 नहीं आया, आपका आंसर जो है 4.8 आया। तो 0.2 is something which is unexplained. Is this clear? So basically OLS decomposes a sample value into two parts. One is an estimated part and the second which is explained by the explanatory variable, and the second is the residual and which is not explained by the model, which is not explained by the regression model. I hope this is clear. Okay. Now let us discuss this further. So we have your yi is equals to yi hat plus ui hat. Okay. Now suppose we do squaring both sides. Squaring both sides. So what do you get? Yi square is equals to yi hat plus ui hat square. ठीक है, ये करा। अब इसके बाद लेट अस डू समिंग बोथ साइड्स। Summing both sides. If we sum both sides, so we get summation yi square is equals to summation yi hat plus ui hat square. ठीक है, अगर हमने इसको एक्सपैंड किया तो ये हो गया आपका समेशन, ये अंदर ही एक्सपैंड हो रहा है, समेशन yi hat square, ठीक है, प्लस ui hat square प्लस 2 yi hat ui hat। ठीक है, अब समेशन साइन जो है वो सब पे आएगा, तो दिस बिकम समेशन yi hat square प्लस समेशन ui hat square प्लस 2 समेशन ui hat yi hat प्लस 2 समेशन ui hat yi hat। इज दिस क्लियर? तो अभी तक हमने क्या डिराइव किया, दैट summation yi square is equals to summation yi hat square plus summation ui hat square plus 2 summation ui hat yi hat। ठीक है, अब हमने अभी प्रीवियस असाइनमेंट में एक रिजल्ट डिराइव किया था, दैट yi hat is equals to beta 2 hat xi, yi hat is equals to beta 2 hat xi। तो इसमें हमने पुट कर दिया दैट इट इज इक्वल टू समेशन yi hat square प्लस समेशन ui hat square प्लस 2 yi hat की जगह हमने डाल दिया बीटा 2 hat xi, तो बीटा 2 hat बाहर आ गया प्लस 2 बीटा 2 hat समेशन ui hat xi। इज दिस क्लियर? ना अब आपको याद होगा जब हमने न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स पढ़ा था, तब उसमें हमने पढ़ा था दैट समेशन ui hat xi इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स योर रेसिडुअल एंड योर जो समेशन ui hat xi इज इक्वल टू 0। आई होप ये याद है सबको। अच्छा, तो उस केस में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, उस केस में हमने पढ़ा था कि समेशन ui hat xi कैपिटल xi 0 पढ़ा था, हमने उस केस में कैपिटल xi 0 पढ़ा था। बट आप इजीली देख सकते हो कि समेशन ui hat स्मॉल xi का क्या मीनिंग है, दैट इट इज इक्वल टू समेशन ui hat एंड स्मॉल xi इज xi माइनस x बार, स्मॉल xi xi माइनस x बार। तो इससे क्या हुआ, xi, तो ये हो गया समेशन xi ui hat माइनस x बार समेशन ui hat। ठीक है, अब समेशन ui hat 0 होता है, ये हमने पढ़ रखा है न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज में, दैट सम ऑफ ऑल रेसिडुअल्स इज 0, so that means summation ui hat xi is equals to summation ui hat capital xi, this is equal to 0।
तो बेसिकली ये वाला जो टर्म है ये 0 हो गया। तो what are we left with? That summation yi square is equals to summation yi hat square is equals to summation yi hat square plus summation ui hat square plus summation ui hat square। ये समेशन कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है? जितनी आपकी सैंपल वैल्यूज है, जितनी आपकी सैंपल वैल्यूज है। ठीक है, आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेरिवेशन। सो व्हाट इज समेशन yi स्क्वायर? समेशन yi स्क्वायर इज एक्चुअली क्या है? ये yi माइनस y बार का स्क्वायर है। This is yi minus y bar, but small yi क्या है? It is deviation from y का जो मीन है वही तो है ये। ठीक है, yi minus y bar square। So this is called as total sum of square। इसका नाम हम इसको बोलते हैं total sum of square। It is called as total sum of square। So this is basically a measure of the total sample variation। It is basically a measure of the total sample variation in y values। कि जो आपकी एक्चुअल y वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब आपके पास एक सैंपल होता है, उसमें y वैल्यूज होती हैं, तो वो y वैल्यूज अपने मीन से कितना डिस्पर्स्ड है, वो y वैल्यूज अपने मीन से कितना डिस्पर्स्ड है, ये उसका मेजर है। इसको बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर कि जो आपकी एक्चुअल y वैल्यूज हैं, ठीक है, उनमें कितना वेरिएंस है, उनमें कितना डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन किससे? उनके मीन से। आपके पास y वैल्यू में उसका मीन निकाल सकते हो ना, तो बेसिकली आप वही कर रहे हो कि हर y वैल्यू में उसका मीन सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहे हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, जो दूसरा टर्म है, तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जो सेकंड टर्म है, दिस इज समेशन yi hat स्क्वायर। व्हाट इज दिस? y hat, स्मॉल y hat का क्या मतलब है? कि ये अपने मीन से डिविएशन है, मतलब yi hat माइनस yi hat मीन होल स्क्वायर, yi hat माइनस yi hat। और ये हमने प्रूव किया है कि yi hat का मीन और yi का मीन सेम होता है। तो दिस इज नथिंग बट समेशन yi hat माइनस, सॉरी आई नहीं आएगा, माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? इट मेजर्स द दिस टर्म, it measures the variation in the estimated y values। what are your estimated y values? your yi hat। कि जब आपने रिग्रेशन रन कर लिया तो उसके बाद आपके पास yi hat आया, ठीक है, yi hat आया तो आपने उनका मीन कैलकुलेट किया जो कि y के मीन के बराबर ही है। तो yi hat में कितना डिस्पर्जन है वो ये टर्म कैलकुलेट करता है, समेशन yi hat, समेशन स्मॉल yi hat स्क्वायर। तो क्योंकि ये yi hat एंड yi hat आर आपके एस्टिमेटेड या एक्सप्लेन्ड y वैल्यूज होती हैं, एक्सप्लेन्ड वैल्यूज जो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ड्यू टू x। तो इसलिए समेशन yi hat स्क्वायर को हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। समेशन yi hat को हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। मतलब ये होते हैं हमारे ESS, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या बच गया? थर्ड कंपोनेंट हमारा बच गया विच इज समेशन ui hat स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि ये रेसिडुअल्स का स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है हम बोलते हैं रेसिडुअल, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर।
इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, इसको हम RSS बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ नहीं है ये, ठीक है। दिस इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर समेशन UI hat स्क्वायर। व्हाट इज समेशन UI hat स्क्वायर? So what is summation UI hat square? This is nothing but summation yi minus yi hat square, क्योंकि UI hat क्या होता है? yi minus yi hat। तो बेसिकली क्या है आपकी इक्वेशन दैट जो हमने डिराइव की, दैट समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन yi hat स्क्वायर प्लस समेशन UI hat स्क्वायर। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो क्या होगा? दैट इट इज इक्वल टू समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर समेशन yi माइनस yi hat स्क्वायर प्लस समेशन yi minus y hat, sorry, so this is summation, let me write again, तो अभी हमने डिराइव किया दैट समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन yi hat स्क्वायर प्लस समेशन ui hat स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर is equal to what is summation yi hat minus y bar square plus summation yi minus yi hat whole square, ठीक है। दिस इज योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मतलब जो आपकी सैंपल में y वैल्यूज है उनमें कितना वेरिएशन है। तो जो टोटल उनमें वेरिएशन है y वैल्यूज में, उसमें से कुछ तो एक्सप्लेन्ड है जो कि हमारा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, और कुछ जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है जो कि हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो हमारे रेसिडुअल्स में कैप्चर हो रहा है। सो टोटल वेरिएशन इन y वैल्यूज इन द सैंपल में जो आपकी डिफरेंट y वैल्यूज हैं, कि मतलब क्यों वो वेरी कर रही हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए, मतलब क्यों वो उनमें वेरिएंस है, विच इज योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें से कुछ वेरिएंस जो है, सम पार्ट ऑफ दिस इज एक्सप्लेन्ड ड्यू टू x, कि भाई अगर जो है अगर सबका फैमिली का इनकम अलग अलग होगा तो उनका कंजम्पशन अलग अलग होगा, इसलिए उनकी y वैल्यूज अलग आएंगी, ठीक है। एंड सम आर अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो जो एक्सप्लेन ड्यू टू x आर योर ESS and unexplained are your RSS. Unexplained are your RSS, which is your residual sum of squares. ठीक है। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो तो सपोज यू हैव x here, you have y here, आपके पास x वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी y वैल्यूज हैं, आपने ये एक रिग्रेशन लाइन फिट की, ठीक है, आपने ये रिग्रेशन लाइन फिट की, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर अब पूरी जो है आपकी y वैल्यूज उनका एक सैंपल मीन होगा, पूरी जो y वैल्यूज होंगी उनका एक सैंपल मीन होगा, सपोज y बार 50 हो गया और 50 इधर आ रहे, तो मैंने वो वाली लाइन बना दी, दैट यहाँ पर y बार वाली लाइन। नाउ सपोज इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू yi, ये एक्चुअल वैल्यू थी, ये आपने प्रिडिक्ट की, ठीक है, और ये मीन है, ये मीन है, मीन तो सब वैल्यूज के लिए एक ही मीन है ना, एक ही मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब वैल्यूज के लिए एक ही मीन है, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएंस है ये तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो दिस इज समथिंग एक्सप्लेन्ड व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड, कि आपके इसमें और इसमें क्यों डेविएशन आ रहा है, ये तो हमने इससे एक्सप्लेन कर दिया कि सबका x अलग है, इसकी वजह से डेविएशन आ रहा है। लेकिन ये और ये वैल्यू जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, ये और ये वैल्यू अनएक्सप्लेन्ड है, और ये आपका एरर टर्म है, ये आपका UI हैट है। आई थोड़ा क्लियर हुआ? तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि बेसिक इसका सेंस क्या है कि ये आपकी एक्चुअल y वैल्यूज हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो आपने उनमें वेरिएबिलिटी देखी, हमने क्यों वेरिएबिलिटी देखी, क्योंकि हम यही तो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना कि y फर्क कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि y में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो एक फिर उसके बाद तो वेरिएबिलिटी हमने कैसे देखी, उसका उनके मेन में से, ठीक है।
फिर हमने रिग्रेशन रन करके yi hat निकाला, फिर हमने yi hat में वेरिएबिलिटी देखी, दैट yi hat माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरिएबिलिटी तो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्योंकि ये तो हमने ही निकाली है। yi hat तो हमने ही निकाला, कैसे निकाला, हर x के लिए निकाला आपने, हर x की वैल्यू डाल के आपने yi hat निकाला। ठीक है, जो लास्ट का ui hat वाला कॉम्पोनेंट है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपका रिग्रेशन मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाता क्योंकि वो अनऑब्जर्वेबल फैक्टर है। तो टोटल वेरिएशन, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हो। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आप इसको याद रखने के लिए एक मतलब छोटा सा ये भी याद रख सकते हैं, सर टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। आप इसमें से तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन जो हमारा मेजर और गुडनेस ऑफ फिट वाला मेजर है वो क्या है, तो as we derive the total sum of square is equal to explained sum of square plus residual sum of square, dividing both sides by TSS, dividing both sides by, suppose मैं TSS करूँ तो क्या हो गया, TSS by TSS is equals to ESS by TSS plus RSS by TSS। ठीक है, तो ये क्या हुआ, that 1 is equals to ESS by TSS plus RSS by TSS। ठीक है, so what is ESS by TSS? So 1 is equal to summation, ESS is summation yi hat square, summation yi square plus summation ui hat square upon summation yi square। okay, अब इसमें से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है मेजर है। व्हाट इज दिस मेजर? So what we have derived, that summation yi hat square upon summation yi square plus summation ui hat square upon summation yi square is equal to 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बेसिकली इज योर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज योर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बेसिकली इसका क्या फॉर्मूला हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ESS by TSS is equal to summation yi hat square upon summation yi square। Why is this important? Because सबसे पहले, so what is the definition? It is the capital R square is the ratio of capital R square is the ratio of explained variation. It is the ratio of explained variation to total variation, explained variation to total variation। So this basically, and in other words, it measures the proportion, it measures the proportion or the percentage, it measures the proportion or the percentage of the total variation in y, of the total variation in y explained by the
explained by the regression model. So basically, as the name suggests, as the formula suggests, it is ESS by TSS. मतलब TSS क्या है? Total variation in your y values, and ESS is your explained variation, which is your yi hat वाला जो है yi hat minus y bar whole square, which is explained variation. तो कितनी percentage of variation है मॉडल में जो आप explain कर पा रहे हो, ठीक है, of the total variation. Now let us take an example to get this clearly. Suppose y is hourly wage, ठीक है, and x is years of schooling. y is hourly wage and x is years of schooling, ठीक है, and आपकी regression equation आई that y hat is equals to minus 0.1044 plus 0.7240 xi plus 0.7240 xi, ठीक है. Now let us first interpret this equation. तो इसका जो इंटरसेप्ट आया बीटा 1 hat आया वो माइनस 0.0144 आया, यानी कि आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है. तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि व्हेन years of schooling is equals to 0, x क्या years of schooling is 0, then the average level of wages is माइनस 0.0144, क्योंकि जब भी हम इंटरप्रेट करते हैं तो y क्या है, y इज द एवरेज लेवल, y इज द वेज. जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो एवरेज वर्ड यूज करते हैं. तो इस केस में क्या होगा कि जब मैंने किसी को हायर किया लेकिन उसके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 0 है, ठीक है, तो उसकी वेज नेगेटिव है. तो इस केस में negative wage doesn't make sense. So intercept, as I told you in the previous video, in this case intercept doesn't make sense here, ठीक है. अब सपोज बीटा टू हैट क्या आया 0.7240 xi, 0.7240 xi, सॉरी xi नहीं है 0.7240. So basically this means कि as years of education increase by 1 unit, the average hourly wage increases by 0.72 units. The average hourly wage increases by 0.72 यूनिट. यानी कि अगर आपका ईयर ऑफ एजुकेशन 1 साल से ज़्यादा है, मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा है, तो आपको 0.72 जो है यूनिट एक्स्ट्रा वेज मिलेगी पर आवर, ठीक है. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा टू हैट. आई दिस इज क्लियर. ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर ईयर्स ऑफ एजुकेशन बढ़ेंगे तो जो है आपकी पर आवर की वेज बढ़ेगी. अब सपोज इस मॉडल के लिए वी विल सी कैलकुलेट कैसे करना है. अगर आपको बता देते हैं, सपोज इस मॉडल के लिए आर स्क्वायर आया 0.9065, फिर आया 0.90. जनरली हम क्या करते हैं, हम आर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए. तो ये क्या हो गया 90.675%. 90.675%. तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ दैट years of schooling explains about 90.65% variation in hourly wage. ठीक है. The rest 9.35%, total 100% होता है, the rest 9.35% is unexplained. इसका क्या मतलब है, देखो डिफरेंट वर्कर्स हैं आपके पास, ठीक है, डिफरेंट वर्कर्स हैं और हर वर्कर की सैलरी जो आपकी वाई है वो अलग है. तो हम इसके रीजन खोज रहे हैं कि भाई हर वर्कर की सैलरी क्यों अलग है. तो हम ये बोल रहे हैं कि 90% तो ये रीजन है कि हर एक का जो है ईयर ऑफ एजुकेशन अलग है. किसी के कम है, किसी के ज़्यादा ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो उनकी ईयर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से उनकी सैलरी फर्क हो रही है. कुछ
जो उनकी अगर उनकी सेम भी है ईयर ऑफ एजुकेशन, अगर उनकी ईयर ऑफ एजुकेशन सेम भी है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी वेजेस सेम हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा जो वाई है वो इसी एक्स से एक्सप्लेन हो रहा है। देयर कुड बी अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, ठीक है, देयर कुड बी अदर फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, जिनकी वजह से ऐसे दो लोग जिनका सेम ईयर ऑफ एजुकेशन है उनकी सैलरी में फर्क आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली हमारा मॉडल ये कह रहा है कि 90% ऑफ योर वेरिएशन इन आर्ली वेजेस, कि भाई हर बंदे को अलग पैसे क्यों मिल रहे हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कि हर बंदे का जो है ईयर ऑफ एजुकेशन अलग है। अराउंड 10% जो है विच इज अनएक्सप्लेन, वो हमें नहीं पता, वो कोई और फैक्टर हो सकता है जो कि हमने अपने मॉडल में नहीं लिया है, ठीक है। तो अब हम कैसे देखें कि हमारा ये मॉडल अच्छा है कि नहीं है। तो अभी जैसे हमने डिराइव किया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई एस एस बाई टी एस एस। So this is explained sum of squares by total sum of squares. Now explained sum of squares कभी भी total sum of squares से ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू, भाई ये तो टोटल वेरिएशन है ना, ये टोटल वेरिएशन है और ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो पूरे मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहा है। जब एक ही फैक्टर पूरे मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहा है तो बेसिकली लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, या हमेशा उससे लेस देन होगा। तो इसका मतलब जो है आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आर स्क्वायर की वैल्यू, और क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें सब स्क्वायर्ड ही है, तो ये 0 से ऊपर होगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये लिमिट्स होती हैं आपकी आर स्क्वायर की। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन लाइज बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन lies between 0 and 1. Coefficient of determination lies between 0 and 1. And this is clear. ठीक है, अगर आपका कैपिटल आर स्क्वायर 1 आ गया, दैट मीन्स इट मीन्स परफेक्ट फिट। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपने ये रिग्रेशन लाइन फिट की और जो सारी एक्चुअल वाई वैल्यूज है वो भी इस रिग्रेशन लाइन पे लाइन कर रही है, कोई एरर ही नहीं, कोई यूआई हैट ही नहीं है, ठीक है। So basically in this case your actual value is equal to predicted value for each I. Your actual value is equal to predicted value for each I. ठीक है, अगर आर स्क्वायर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो रिलेशनशिप कि आप कुछ भी परसेंटेज जो है वेरिएशन जो है अपने वाई वैल्यूज में ड्यू टू एक्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। So there is no relation between x and y. So in this case you will find that beta 2 hat is equals to 0. कि मतलब x के चेंज होने से y में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, x के चेंज होने से y में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। Is this clear? So these are the extreme points. So closer r square is to 1. Closer r square is to 1 when this becomes 100%, better is the regression. कि जितनी ज़्यादा जो है आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के क्लोजर है या 100%, तो आपकी रिग्रेशन लाइन उतना अच्छा एक्सप्लेन। ऑल्दो ये अभी आप इसको अभी तो ये लिख सकते हैं, बट दिस स्टेटमेंट हैज सम लिमिटेशंस, वी विल सी इन द मल्टीपल रिग्रेशन वाला चैप्टर कि क्या लिमिटेशन है। अभी आपको ये याद रखना है कि क्लोजर आर स्क्वायर इज टू 1, ठीक है, बेटर इज द रिग्रेशन लाइन। क्लोजर योर आर स्क्वायर इज टू 1, बेटर इज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज अ वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। इट बेसिकली टेल्स यू how much of the variation in y can be explained by the regression model, how much percentage of the variation in y value can be explained by the regression model. Is this clear? Okay, now there are some proofs, there are some results. The first result is for a two variable regression model,
capital R square is always equal to small r square. What is capital R square? It is coefficient of determination जो भी हमने पढ़ा ESS by TSS. Capital R square is always equal to small r. What is R square? तो ये जो हम coefficient of correlation, R is the coefficient of correlation. R is the coefficient of correlation. So small r square is square of the coefficient of correlation. Small r square is square of the coefficient of correlation. टू वेरिएबल केस में जो कैपिटल R स्क्वायर है वो स्मॉल r स्क्वायर के R क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, उसका स्क्वायर करोगे उसके बराबर आएगा. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाई और हाउ. इसका प्रूफ करते हैं. तो अभी हमने पढ़ा दैट योर कैपिटल R स्क्वायर इज ESS by TSS और इट इज इक्वल टू समेशन yi hat स्क्वायर बाय समेशन y स्क्वायर. ठीक है. अब ये आपको अभी मैंने आप लोगों को अभी कराया दैट yi hat इज इक्वल टू बीटा 2 hat xi. yi hat इज इक्वल टू बीटा 2 hat xi. ठीक है. तो इससे क्या हुआ? दिस बिकम समेशन बीटा 2 hat xi स्क्वायर समेशन बीटा 2 hat xi स्क्वायर बाय समेशन y स्क्वायर. समेशन बीटा 2 hat xi स्क्वायर बाय समेशन y स्क्वायर. ठीक है. तो बीटा 2 hat स्क्वायर बाहर आ गया. बीटा 2 hat स्क्वायर बाहर आ गया. यहाँ क्या बचा? समेशन xi स्क्वायर बाय समेशन yi स्क्वायर. समेशन xi स्क्वायर बाय समेशन yi स्क्वायर. अब एक बीटा 2 hat का फॉर्मूला जो हमने शुरू में किया था दैट इट इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये क्या है? डेविएशन के फॉर्म. इट इज इक्वल टू समेशन xi yi बाय समेशन xi स्क्वायर. तो अब इस फॉर्मूले में आपने ये वाला फॉर्मूला डाल देना है. तो क्या है? आंसर आएगा. तो इट इज बीटा 2 hat स्क्वायर है तो समेशन xi yi बाय समेशन xi स्क्वायर उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन xi स्क्वायर अपॉन समेशन yi स्क्वायर. ठीक है. तो क्या हुआ कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा? समेशन xi yi स्क्वायर और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर था तो एक ये कट जाएगा यहाँ पर और एक बच जाएगा आपका. तो ये बचेगा समेशन xi स्क्वायर समेशन yi स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर समेशन yi स्क्वायर. ठीक है. नाउ व्हाट इज r? r क्या होता है? r इज correlation coefficient between x and y, so it is equal to summation x minus x bar y minus y bar upon summation x minus x bar whole square summation y minus y bar whole square. अगर आपको ये याद है तो ये इसका एक्चुअली ये रूट है. ये आपका जो है सॉरी if you look at the formula तो r क्या है? r is covariance xy upon standard deviation of x standard deviation of y. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 1 by n समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार नंबर्स के लिए अपॉन. तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है 1 by n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर on 1 by n summation y minus y bar whole square. ठीक है. तो ये क्या बच गया? तो ये हो गया summation x minus x bar y minus y bar अपॉन रूट ऑफ 1 by n रूट ऑफ 1 by n 1 by n हो गया. तो 1 by n कैंसिल हो गया. रूट ऑफ x minus x bar whole square and root of y minus y bar whole square. So this is nothing but small x and y के टर्म्स में small x y अपॉन रूट अंडर समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर. ठीक है. तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ? ये जो है ये नथिंग बट ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर है. ठीक है. तो हमेशा याद रखना है कि टू वेरिएबल मॉडल के केस में कैपिटल आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्क्वायर्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल है. बट ये सिर्फ टू वेरिएबल मॉडल में होता है.
आगे हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल मॉडल में नहीं होता. दिस होल्ड्स ओनली फॉर 2 वेरिएबल केस बट नॉट फॉर 3 वेरिएबल केस. इज इट क्लियर? ठीक है. एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. तो योर ESS by TSS is R square by definition. ठीक है. तो ESS is equals to R square multiplied by TSS. ESS is equals to R square multiplied by TSS. ESS is R square multiplied by TSS. ठीक है. Now RSS is TSS minus ESS. ठीक है. अगर मैंने TSS कॉमन लिया तो TSS 1 minus ESS by TSS. ठीक है. So what is total sum of square? तो residual sum of square क्या है? Residual sum of square is summation UI hat square. Summation UI, what is total sum of square? Summation YI square is 1 minus, what is ESS by TSS? It is 1 minus R square. It is 1 minus R square. ठीक है. तो यहाँ से ये आया that summation UI hat square is equal to summation YI square. Summation YI square is equals to summation YI square ओके. ठीक है. So this is this. ठीक है. So I can write this as, so ठीक है. तो this is first कि मैंने summation UI hat square को ऐसे लिख दिया. Summation UI hat square को मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है. अब second, your R square is ESS by TSS. Your R square is ESS by TSS. So I can write ESS as R square multiplied by TSS. So it is R square multiplied by what is TSS? Total sum of square. So it is summation YI square. It is summation YI square. ठीक है. तो since total sum of square is equal to ESS plus RSS, therefore total sum of squares is summation YI square is equals to ESS क्या है? ESS अभी हमने derive किया in terms of R square. So ESS is R square summation YI hat square, and what is RSS? RSS is 1 minus R square 1 minus R square summation, यहाँ पर hat नहीं आएगा. वन माइनस आर स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर. ठीक है. तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने जो अपना टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है, आपने जो आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है उसको इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर लिख दिया. उसको आपने इन टर्म्स ऑफ जो है यहाँ पर जो है आर स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया. तो ये भी कहीं ना कहीं यूज आ जाता है. ये वाला फॉर्मूला भी कहीं जो यहाँ पर यूज में आ सकता है. इज इट क्लियर? So I hope this is clear. The R square part is clear. It is, as I told you, this is very important
ठीक है। नाउ एक और इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ना, देन वी विल सी कि इसका जो है न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ना। सपोज सैलरी hat, so salary hat basically into your yi hat is 963, it is equal to 963.191 plus 18.501 return on equity, ROE is return on equity, and capital R square is equals to 0.0132. So basically ये एक मॉडल है जिसमें हम बोल रहे हैं कि सीईओ को कितनी सैलरी मिल रही है। तो सीईओ की सैलरी जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आ रही है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, हमने सिर्फ ये मॉडल रन किया कि सीईओ की सैलरी को रिग्रेस किया और कि उस कंपनी की जो इक्विटी है, जो शेयर है, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, तो हमें ये मॉडल मिला। तो इस केस में हमारा आर स्क्वायर कितना आया 0.0132, विच इज एक्सट्रीमली लो। So this basically means that, which in percentage terms is 1.32%. This basically means that the firm's return on equity, explains only about 1.3% of the variation in salaries of CEOs. ये हमने ये जिस बुक में से मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो उन्होंने जो है 209 सीईओ की सैलरी, तो उन्होंने क्या किया, आपका वाई वेरिएबल क्या है कि सीईओ की सैलरीज है, ठीक है। तो 209 सीईओ की सैलरीज को रिग्रेस किया किस पे, उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो उन्होंने देखना चाहा कि इसमें क्या रिलेशन है। तो बेसिकली क्या मिला उनको कि सिर्फ जो कि सीईओ की सैलरी, हर सीईओ की सैलरी अलग की है, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 1.3% कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स, दिस बेसिकली मीन्स this means 98.7% of the salary variation, 98.7% of the salary variation of the CEO is unexplained, यानी कि आपने बहुत अच्छा रिग्रेशन मॉडल चूज नहीं किया कि भाई आपका जो रिग्रेशन मॉडल में आपने प्रिंसिपल वेरिएबल लिया वो तो सिर्फ 1.3% वेरिएशन ही बता पा रहा है, 98.7% वेरिएशन तो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। दिस मीन्स 98.7% of the salary variations of the CEOs is unexplained. This may not be too surprising because many other characteristics of both the firm and the individual CEO, should influence salary की और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे सीईओ स्पेसिफिक की, भाई उसका कैसा एक्सपीरियंस है, उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फर्म्स जैसे कुछ फर्म्स ज़्यादा पैसा देती हैं, कुछ कम देती हैं, विच शुड इन्फ्लुएंस सैलरी। तो अभी ये सारे फैक्टर्स किस में आ रहे हैं, आपके एरर में आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, अभी ये सारे फैक्टर्स आपके एरर में आ रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये अच्छा मॉडल नहीं है कि सिर्फ आप सीईओ की सैलरी को जो है आप किस पे रिग्रेस कर रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी पे। हमें कैसे पता चला, क्योंकि मॉडल का आर स्क्वायर बहुत ही लो आया, आर स्क्वायर 1.3 इज एक्सट्रीमली लो, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी कि आपको अपने मॉडल में और सारे फैक्टर इंक्लूड करने पड़ेंगे और ये एक प्रिंसिपल फैक्टर नहीं है। तो आपको बेसिकली एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लगाना पड़ेगा, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यूमेरिकल, कि आपको अगर एक एग्जांपल मैं दूं और आपको बोलूं कि न्यूमेरिकल आपको जो है कैसे कैलकुलेट करना है। सो आई वोंट सॉल्व दैट, आई जस्ट टेल यू दो मेथड्स क्या हैं। सपोज यू हैव कैलकुलेट आर स्क्वायर
for the following data. Calculate R square of for the following data. ठीक है, तो आपको क्या गिवन होगा, सिर्फ x वैल्यूज एंड y वैल्यूज. ठीक है, इसी के लिए आप करके देख लीजिएगा पहले, इसी न्यूमेरिकल के लिए 16, 14, 12, 11, 12, 15, 13, 11. These are your x values and y values are 3.5, 3.2, 3, 2.6, 2.6, 2.9, 3.3, 2.7 and 2.8. So you have your x and y value. फर्स्ट स्टेप है, तो आप इसको दो तरीके से, अगर आप इसको कर सकते हैं, अगर आज को निकालना हो, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं. पहला है योर यूजुअल फाइंड आउट व्हाट इज बीटा टू हैट. बीटा टू हैट किसी भी फॉर्म में से निकाल लो. ठीक है, हाँ, इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके एक्स बार जो है वो 13 आ रहा है और वाई बार आपका 3 आ रहा है, मतलब दोनों ही आपके होल नंबर आपके आ रहे हैं. ठीक है, so you can easily use this formula summation x minus x bar y minus y bar summation x minus x bar whole square. ठीक है, so you will get that, आप करके देखना, ये आएगा 3.6 by 24 I guess, so it is 0.15. ठीक है, 0.15. so बीटा वन हैट कैसे निकलेगा, बीटा वन हैट इज y bar minus बीटा टू हैट x bar, so it is equal to 3 minus 0.15 into 13, so this comes up to be 1.05. ठीक है, so your regression equation is y hat is equal to 1.05 plus 0.15 xi. ठीक है, ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन हो गई. अब आपको आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आर स्क्वायर है ESS by TSS, so it is equal to summation what is explained sum of square, so basically summation yi hat square by summation yi square. So you need summation yi hat minus y bar square upon summation yi minus y bar square upon summation yi minus y bar square. ठीक है, तो ये आपकी x और y वैल्यूज हैं. ठीक है, तो अब क्या करो आप, तो एक कॉलम तो आपको चाहिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए, तो यू नीड y माइनस y बार. तो आपका y बार जैसे 3 आया. ठीक है, तो दिस y बार इज 3, तो 3.5 माइनस 3, तो ये 0.5 हो गया, देन ये 0.2 हो गया. ऐसे करा आपने, और फिर आपने किया y माइनस y बार होल स्क्वायर, तो ये 0.25 हो गया. ठीक है, सिमिलरली आपका 0.04 हो गया. ऐसे आपने किया. नेक्स्ट कॉलम में यू नीड yi hat. yi hat कैसे निकालोगे, तो आपकी जो इक्वेशन आई दैट इट इज 1.05 प्लस 0.15 xi, 1.05 प्लस 0.15 xi. तो आप x की वैल्यू डालोगे 16, तो आपका आंसर आएगा कुछ. ठीक है, सिमिलरली आप सबके लिए yi hat निकालोगे. नेक्स्ट कॉलम आपको क्या चाहिए, yi hat माइनस y बार. तो जो yi hat आई, इसमें से y बार आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया. फिर एक कॉलम आपको चाहिए कि आपने उनको स्क्वायर किया. ठीक है, तो आपने उनको स्क्वायर किया, तो फिर आप इससे चेक करोगे, तो यू गेट कि इट इज 0.54 by 0.68, so it is equal to 0.7941. This basically means कि 79.41% of the variation in y is explained by x. कि भाई y की वैल्यूज डिफरेंट क्यों हो रही हैं, बिकॉज 80% उसका रीजन है कि x वेरी कर रहा है, इसलिए y की वैल्यूज डिफर कर रही हैं. ठीक है, दिस इज वन मेथड जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से मेथड है, बट दिस इज अ लेंदी प्रोसीजर. देयर इज वन इजी प्रोसीजर टू योर सेकेंड मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया कि 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है.
तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल आर से कैलकुलेट कर लो, वो कैलकुलेट करना इजी होता है, विच इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर रूट अंडर एंड रूट अंडर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। आप इससे भी निकाल सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली आर का फॉर्मूला, इसको आप स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको जो है रिग्रेशन लाइन नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में आर स्क्वायर निकालने को बोला है। बट जनरली क्या होता है कि पहले आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है। ये तो आपने, क्योंकि यहाँ पे वाई हैट में यूज हो रहा है ना, तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड इवन विदाउट द रिग्रेशन लाइन। ये तो बस ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो बिटवीन एक्स एंड वाई, उसका स्क्वायर कर लो तो दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में है कि पहले आपको रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है, तो एक उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, दैट स्मॉल आर स्क्वायर इज डी वाई एक्स इंटू डी एक्स वाई। What is dy(x)? It is the regression coefficient of y on x. What is dxy? It is the regression coefficient of x on y. Is this clear? So basically what we are using is capital R square is equals to small r square is equals to dyx और dxy. Basically वही सारे फॉर्मूले हैं। So dyx is nothing but your beta 2 hat, ठीक है, जो कि आपका आया समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से, जो हमने अभी यहाँ पर निकाल ही लिया, दैट इट इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, बी एक्स बार जो कि मेरा होता है बीटा 4 हैट, वो क्या होगा समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपने निकाल ही रखा होगा ऊपर, ये वाला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट कर लेना। तो जब आप डी वाई एक्स और डी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो वो भी आपको सेम आंसर देगा 0.7941, जो कि इजी होगा इस मेथड में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। So I hope this is clear and I hope this was an interesting video. So as always I have given you an associated assignment. If you have any doubts you can always call me or text me, otherwise I'll take a doubt session next week. So thank you.